parties together will have to make sure that the system responds speedily and justice is delivered in time. But because we want our political games to be played, we are selective about voicing horror when it is in some states and remain in complete silence when it is uncomfortably in states which are governed by the Congress party. The enthusiasm with which, almost as though they were going for a picnic, the brother and sister pair which ran towards an unfortunate site where something had happened, you want to go, something is rape there. Of course, you're well within your right to go and raise the issue, demand justice for the family. But why not in Hoshiarpur? Why not if it is Rajasthan? The selective cry of outrage that the Congress party wants to show when it is elsewhere but not in their respective governed states is completely exposed. And so is the question for even Tejashwi Yadav, who's contesting in a very forceful manner with his party's leadership being on him. The Bihar elections, a Bihar small child, the daughter of a migrant worker in Punjab. Didn't you please check it up when you had a joint campaign with a Congress leader in Bihar? Are you not answerable to that family in Bihar whose migrant workers have gone there to Punjab? And of course, it doesn't help to say that when I was just looking at the details, there are allegations, at least there were allegations in 2008 against the brothers of the RJD in Delhi for eve teasing and allegations of misbehavior with women. So it doesn't affect them. And of course, during the Jungle Raj in Bihar, we know what was the level of our law and order. Senior government officials' wives were misbehaved with. So it may not hurt the RJD because it's all right. That's how things were when they were in power. But the pretentious Congress is nowhere. Not a word from the tweet-friendly leader, Shri Rahul Gandhi. No tweets on this. No outrage on this. And no picnic on this. Congress party should stand up and answer. A woman, a lady, heads their party. Does this kind of selective outrage suit the stature of their party? I wish the Congress party comes out to answer. The BJP stands with all those who want to give justice to this family in Hoshiarpur. I recall when it was something in Hathras in UP, 35 senior MPs of the party from all over the country, flamboyant in their statements in Twitter, were wanting to go marching to Hathras, asking for justice. Where are those 35 today? No sense of outrage? If it's a Bihari Dalit child, because it is Punjab under Congress government? The BJP will stand for justice, and I'm happy one of our senior leaders took up the responsibility
Samplaji had gone to the place, and BJP will ensure justice is done to this family and in time. Thank you. Do you want to do it in Hindi in case? No, in case you want to say it in Hindi. Hey. हाँ नहीं ठीक है, मगर मेरा हिंदी तो इतना खराब है जी, मैं बोलना हाँ सर, मैं प्रयत्न कर रही हूँ मेरे हिंदी में। होशियारपुर में 6 साल की एक नन्ही लड़की के ऊपर दुष्कर्म हुआ, उनको मारा गया और उनके लाश को जलाने का कोशिश भी हुआ। बिहार से पलायन होते हुए आए हुए एक लेबरर के, माइग्रेंट वर्कर के परिवार से ये बच्ची, उनके काम खेती में कर रही थी, उनके परिवार खेती में काम करने वाले परिवार है, और दुष्कर्म के बाद लड़की तो मर गई। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के इस ट्वीट से मैं कहना चाह रही हूं, कांग्रेस पार्टी की चुप्पी इस विषय के ऊपर एकदम दुखद है। आप रेप को पहले राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। महिला का सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हम सबका है। राजनीति करना रेप के विषय में गलत है। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपके सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है, उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। और कल बिहार में तेजस्वी यादव के साथ आप भी कैंपेन में गए थे। क्यों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी से नहीं पूछा कि बिहार की एक सुपुत्री उधर पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ये दुष्कर्म हुआ, उसके बारे में क्यों राहुल गांधी जी और तेजस्वी उधर से चुनाव के संबंधित संबोधन करते हुए इसके बारे में बोल नहीं सकते थे? राजस्थान में या कहीं और जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां अगर एक ऐसे दुष्कर्म होता है, वो उनको दिखाई नहीं देता। उनके राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए बीजेपी के सरकार जहां है, वहां ढूंढ ढूंढ कर जाने वाले 35 कांग्रेस के एमपी, वरिष्ठ एमपी गण पूरे देश में से इकट्ठा होकर के गए हाथरस के ओर। आज होशियारपुर के रास्ते उनको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं? क्यों दिखाई नहीं दे रहा? कांग्रेस पार्टी अस्तित्व कंप्लीटली खो चुके हैं उनके। आज ऐसे राजनीति महिला के विषय में, महिला सुरक्षा के विषय में राजनीति करके उनके अस्तित्व ढूंढने वाले कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाह रही हूं। बिहार के चुनाव में उनके साथ जो तेजस्वी यादव जी खड़े होकर के बात कर रहे थे,
मैं इस विषय में न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ने के समय मुझे दिखाई दिया 2008 में आरजेडी के दोनों भाई, उनके ऊपर दिल्ली में छेड़छाड़ के एलिगेशंस भी थे। इसीलिए आरजेडी के नेतागण को बिहार के सुपुत्री के ऊपर क्यों याद और सम्मान मन में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, नहीं रहेगा, क्योंकि आरजेडी के जंगल राज के समय वरिष्ठ अधिकारीगण के श्रीमती, वाइव्स ऑफ ऑफिसर्स, उनके भी बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म का रिपोर्ट्स मीडिया में है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी, आरजेडी भी आज बिहार के चुनाव में खड़े होकर के इस विषय को छेड़ना उनसे नहीं होगा। मैं इस संदर्भ में आपके सामने, आपके द्वारा ये कहना चाह रही हूं कि बीजेपी बिल्कुल इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े होकर के लड़ेंगे और उनको समय पर न्याय दिलवाएंगे। राइट, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो ऐसा ही एक और विषय है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में 1000 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई, कोई नहीं बोल रहा है। किस तरीके से देखते हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई हो। किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र की सरकार को और मुंबई के पुलिस कमिश्नर की इस हरकत को? ये तो कांग्रेस की डीएनए ही है। कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी के समय, आप सबको याद होगा, विपक्ष के पूरे नेतागण को और मीडिया को इतना सता करके उन सबको जेल भिजवाए। आपको याद भी होगा, एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरे उनके फ्रंट पेज को ब्लैक करके कुछ और नहीं लिखा था, ये था कांग्रेस के इमरजेंसी टाइम के कुशासन। उसी डीएनए में चलने वाले आज महाराष्ट्र के कांग्रेस के सरकार भी, कांग्रेस अलायंस वाले सरकार भी यही तो कर रहे हैं। और मैं इस संदर्भ में विषय बोलना चाह रही हूं, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े घोषणा करने वाले एक्सट्रीम वामपंथी हो, या उनको समर्थन देने वाले कांग्रेस हो, इसको जवाब दें जरूर कि इतने सारे अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बोलते आए हैं, माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ बोलते आए हैं, कहीं एक के खिलाफ कुछ एक्शन हुआ है क्या? नहीं। मगर उधर आप ही बोल रहे मीडिया से 1000 लोग तक अरेस्ट करके बैठे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस वाले सरकार। मगर पूरे दुनिया में ये नेटवर्क जो चलती है वामपंथी और कांग्रेस का, भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि इस सरकार, एक बार जरा सच्चाई तो बाहर आए कि कौन सी सरकार के समय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना दबाव में है। इमरजेंसी जैसे अभी जहां कांग्रेस के कुशासन है महाराष्ट्र, वहां हुआ है, ना कि कहीं और। मगर कंपैरिजन करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज दिक्कत में है। कोई हमारे बीजेपी के सरकार जहां है वहां दिक्कत में कोई नहीं है। दिक्कत है तो कांग्रेस चलाने वाले सरकार जहां भी है वहां है दिक्कत। एक दूसरा इंसिडेंट भी, आप शायद मुझे करेक्ट करिए मैं गलत बोल रहे हूं तो, छत्तीसगढ़ में हुआ एक जर्नलिस्ट का पिटाई। मीडिया के भाई बहन जरा इसके ऊपर सोच ले। कांग्रेस के डीएनए
किस हद तक जा सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए। और उनके पूरे कैंपेन का सर्किट, पूरे सर्किट, दुनिया भर के सर्किट लिखते हैं, इतने पन्ने पन्ने लिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है। खतरे में कहां है? जहां कांग्रेस के सरकार है वहां। And there's a lot of activity in Kashmir as well. Gupkar Alliance would be meeting in Mehbooba Mufti's residence, and she's saying that she won't be holding tricolor till the flag is restored. How do you see this now? I would rather focus on today's Hoshiarpur incident. Any And there friends will on- always be a time when I